الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اسلام کا اعلان فرمایا تو اس وقت مکہ معظمہ میں لوگ آپ کی دشمنی پر تل گئے اور پھر دشمنی یہاں تک بڑھی کہ دھیرے دھیرے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگ داخل ہونے لگے اور لوگ جیسے ہی قریب آنے لگے اسلام قبول کرنے لگے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں پہ ظلم و ستم اور تشدد کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا ستایا گیا کون نہیں جانتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دی گئی۔ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنا ظلم و ستم ہوا کون نہیں جانتا۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ جن کو مکہ معظمہ میں بہت ستایا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حبشہ کی جانب اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت فرمائی کہ آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں اور یا مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو اس میں بہت سے صحابہ حبشہ چلے گئے اور بہت سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ صحابہ کرام اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ اور حبشہ چلے گئے اور بعد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے اب آپ پیچھے تھوڑا پلٹ کے آئے کہ جب حضور مکہ میں تھے تب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ بے حد ظلم و ستم کیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا۔ طائف کی میدان میں کیا ہوا، طائف میں جب دعوت دینے گئے تب کیا ہوا کون نہیں جانتا کہ سرکار بھی کتنا ظلم و ستم ہوا۔ سرکار سب سہتے رہے، ظلم سہتے تو ہیں مگر ستم کیا نہیں کرتے، راجلہ خالد نے کہا تھا۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تب بھی مکے والوں کی دشمنی کی آگ نہ بجھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جنگ پہ آمادہ ہوئے اور سب سے پہلی جنگ سن ہجری 2 میں میدان بدر میں ہوئی۔ رمضان المقدس کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو 17 رمضان سن ہجری 2 کو بدر کے میدان میں جنگ ہوئی اور عظیم الشان یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور 313 مسلمان تھے، 1000 کفار مکہ تھے۔ مگر واہ رے میرے نبی کے دیوانوں، جب میدان عمل میں اترے ہیں تو ابو جہل عتبہ اور بڑے بڑے امیہ بن خلف بڑے بڑے کافروں کے لاشیں چھوڑ کر دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے اسلحہ کے بھروسے پر آئے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہتھیاروں کے بھروسے پہ آئے تھے، وہ اپنی طاقت کے بھروسے پہ
पे आए थे, मगर मुसलमान ताकत के भरोसे पे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आए थे। जब वो भरोसे पे आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5000 फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों की गैर से मदद फरमाई। बहरहाल मुझे जहां जाना है वहां करीब बड़ी तेजी के साथ में वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मुझे असल में उन 3 अजीम सहाबा की दास्तान बयान करनी है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। जब वो कुफ्र के मैदान में थे तब भी वो अजीम थे और जो कुफ्र के लिए अजीम थे, और जब इस्लाम के दामन में आ गए तो मुसलमानों के लिए अजीम थे। सुभान अल्लाह। बहरहाल सन हिजरी 2 में ये जंग हुई। कुफार कई लाशें पीछे छोड़कर मैदान से पीछे हटने पर मजबूर हुआ और उल्टे कदम कुफ्र पीछे भागा। मक्के मुअज़्ज़मा में जाकर के सांस ली। उसके बाद में आप देखें ओहद में जंग हुई, उसके बाद में आप देखें तो खंदक की जंग हुई, और उसके बाद में दीगर जंगों के अंदर कुफार आते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने, आका रज़ा अलैहिस्सलाम के गुलामों ने हर मैदान में फतेह व कामरानी के झंडे गाड़ दिए। कुफार शिकस्त खाने पर मजबूर हुआ, वो शिकस्त खाकर पीछे हटा, और फिर वो वक्त आया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए उमरा के लिए, और जब हुदैबिया के मकाम पे गए वहां जाकर के आपको दुश्मन ने रोक लिया, और वहां फिर सुलह हुई जो सुलह हुदैबिया के नाम से तारीख इस्लाम में मशहूर है। और उसके बाद में सूरह फतह की नाजिल हुई जो पहली आयत है, और उसके बाद में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। फिर सरकार दो जहां ने अगली साल आपने कज़ा उमरा अदा फरमाया। कज़ा उमरा अदा फरमाने के बाद में सरकार तशरीफ लाए। अब आगे इस तरह ये इस्लाम का कारवा आगे बढ़ता चला गया। लोग दिन ब दिन इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। अब हालात ये थे कि अरब ही नहीं अजम से भी लोग आ रहे थे और दामन इस्लाम में पदा ले रहे थे। लोग जोग अब दामन इस्लाम में आने लगे। तो इधर मक्के में हाल क्या हुआ, उस वक्त मक्के के अंदर बड़े अजीम शख्सियतें थी जिनमें हजरत अमर बिन आस है, हजरत अमर बिन आस है, हजरत खालिद बिन वलीद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद नदद माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमत बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम आगे याद आएगा, मैं बताऊंगा। बहरहाल ये इनका हाल अजीब हुआ। हजरत अमर बिन आस की कहानी मैं आपको चंद ही मिनटों में अर्ज कर दूं, बाकी लंबी दास्तान है। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी अलैहिर्रहमा और दिगर उलमा ने भी तफसील के साथ इनकी कहानियां लिखी है कि किस तरीके से ये अजीम जमील इस्लाम के दामन में आ गए। इधर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था, वो मक्का मुअज़्ज़मा से निकल करके मकाम रहत में आ गए। यहाँ चंद दिन रहे और यहाँ से वापस अपने कबीले में गए। कबीले में जाने के बाद में कबीले वालों को जमा किया। जमा करने के बाद में फरमाते हैं, अरे मेरे कबीले वालों बताओ क्या मेरा फैसला दुरुस्त है, मुझे कैसा सरदार तस्लीम करते हो। कहा कि अरे सरदार आपका फैसला हतमी फैसला है और आपके फैसले में कोई गलतियां नहीं होती है, हम आपके फैसले को हतमी फैसला तस्लीम करते हैं। आप जो कहते हैं आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त होती है। कहा कि अब सुनो मेरी राय यह है कि अब दिन ब दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर बढ़ता ही जा रहा है, उनकी ताकत में इजाफा ही हो रहा है, उनके गुलामों में और इस्लाम कबूल करने वालों में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब मक्के में भी इस्लाम फैल जाएगा और मक्के वाले भी इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं अहद कर चुका हूं, अगर पूरा अरब मुसलमान हो जाए मैं अकेला बचूं तब भी मुसलमान नहीं होगा, ये मेरा अहद है। इसलिए मैं चाहता हूं हम यहां से मक्का छोड़कर हबशा की जानिब चले जाए और हबशा में जाकर के रहे। हबशा का बादशाह मेरा दोस्त है, नजाशी से मेरे अच्छे ताल्लुकात है, वहां रहेंगे और वहां रह के देखेंगे अगर इस्लाम गालिब आ गया, हुजूर अरब पर गालिब आ गए, पूरा अरब इस्लाम कबूल कर लिया, हम हबशा में होंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को माअज़ल्लाह शिकस्त हुई और हमारी कौम गालिब आ गई तो हम वापस पलट के आ जाएंगे और ये इनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात है, हमें मक्के में कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ेगा, हम वापस चले आएंगे। कहा ठीक है। इस तरीके से हजरत आमिर बिन आस, हजरत अमर बिन
आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले को लेकर के हबशा की जानिब चल पड़े। जब हबशा पहुंचे हैं, हबशा जाने के बाद में वहां पे चंद दिनों रहे। फिर वहां से ये मक्के से निकलते वक्त कुछ चमड़े के मस्तूआत लेकर के नजाशी के दरबार में तोहफे के तौर पे देने के लिए मक्के से लेके चले थे कि नजाशी के दरबार में देंगे। और नजाशी को चमड़े के बनी हुई मस्तूआत बड़ी पसंद थी, इसलिए ये लेके मक्के मुअज़्ज़मा से चले हैं। जब हबशा पहुंचे हैं, हबशा जाने के बाद में जब एक दिन वो वक्त आया, वो दिन भी आया कि हजरत अमर बिन आस अब नजाशी के दरबार में पहुंचे हैं। नजाशी के दरबार में जब गए तो वो खुद कहते हैं मैं वहां के आदाब के मुताबिक वहां जाके नजाशी को सजदा किया, दरबार में दरबार शाही में जाके सजदा किया, सजदा रेल हुआ, फिर सजदे से सर उठाया। नजाशी ने कहा अरे मेरे दोस्त तुम मक्का मुअज़्ज़मा से कब आए हो? कहा मैं अभी आया हूँ, चंद दिन हुए। कहा कि अच्छा मक्का मुअज़्ज़मा से मेरे लिए कोई तोहफा भी लाए हो? कहा जी हाँ लाया हो। और चमड़े की बनी हुई मसनूआत उन्हें दे दी, उन्हें बहुत पसंद आई और अपने वजीरों में तोहफे तकसीम किए और खुद के लिए रखा और फिर कहा इसे मालखाने में जमा करवा दो। जब मैंने देखा कि नजाशी ने इसे बहुत खुश हुआ है तो जो मंसूबा तय करके आया था उस मंसूबे के मुताबिक मैंने बात की। मंसूबा ये था कि हजरत हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनके मदीना मुनव्वरा से नजाशी के दरबार में आए थे। हुज़ूर का खत लेकर के जो नजाशी के नाम था और कहा कि वहां पे जो जाफर तैयार वगैरह देगर मुसलमान है उनकी हिफाजत की जाए और हजरत उम्मे हबीबा का निकाह सरकार से किया जाए। ये खत लेकर के हजरत आमिर वहां पहुंचे थे। सरकार रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कासिद के बारे में सवाल ये था, उन्होंने मंसूबा ये बनाया था मैं जाकर के इन कासिद को मांगूंगा और जब हमारे हवाले कर दिए जाएंगे हम उन्हें कत्ल कर देंगे, उन्हें शहीद करने के बाद हम मक्के मुअज़्ज़मा चले जाएंगे। इस तरह मक्के वाले हमारे इस कारनामे से बड़े खुश हो जाएंगे और हमारी गैर हाजिरी भी महसूस नहीं करेंगे। कहा ये ठीक अच्छा मंसूबा है। अब ये अपने मंसूबे के मुताबिक जबान खोली और कहा ओ बादशाह हबशा और नजाशी और मेरे दोस्त मेरा एक मुतालबा है। कहा वो क्या है? कहा थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे दरबार से एक आदमी को निकलते हुए देखा है और उसका नाम आमिर है जो मदीने से आया है, जो हमारे दुश्मन का कासिद है। वो हमारा दुश्मन जिसने हमारे बड़े बड़े सरदारों को कत्ल कर दिया, वो हमारा दुश्मन के बद्र में हमारे सरदारों को मार गिराया, वो हमारा दुश्मन जो मक्के में बड़े शान और शौकत से आया मक्के से जाने के बाद में भी, और वो हमारा बड़ा जानी दुश्मन है। हमने चाहते हैं तुम हमारे दुश्मन के कासिद को हमारे हवाले कर दो ताकि मैं उसे उसके कत्ल करके मैं अपनी प्यास को बुझा दूं और ताकि मैं अपनी दुश्मनी निकाल लूं। इतना सुनना था नजाशी जो बादशाह था हबशा का, उसको जलाल आ गया और गुस्से में आकर के एकदम उसका चेहरा लाल पीला हो गया, सुर्ख उसका चेहरा हो गया और उसने एक तमाचा एक मुक्का आमिर के मुंह नाक पे और मुंह पे मारा। नाक से खून बहने लगा और जब नाक से खून बहा, इतना खून बहा कि उनके कपड़े तक रंगीन हो गए और कपड़े रंगीन होने के बाद में उन्होंने अपने कपड़ों से पूरे खून को साफ किया मगर कपड़े पूरे तर हो चुके थे और नजाशी बादशाह हबशा गुस्से से कांप रहा था। वो बेहोश होकर गिरे। थोड़ी देर बाद में जब होश आया अब नजाशी का गुस्सा भी उतर चुका था और उसको वो कहने लगे मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने कैसा बेजा मुतालबा उनसे कर दिया है। काश मैं ये मुतालबा न करता तो बादशाह को गुस्सा न आता, नजाशी को गुस्सा न आता और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, अगर जमीन फट जाती तो मैं जमीन में दब जाता, इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई। फिर बाद में मैंने कहा कि खैर मुझे माफ कर दे। नजाशी ने भी कहा मैंने गुस्से में आके तुम्हें मार दिया था तो आप भी मुझे माफ कर दे। कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने शाही लिबास मुझे दिया और गुस्ल खाने में भेजा। कहा जाके गुस्ल कराओ और ये शाही लिबास जेब तन कर लो। शाही लिबास मैंने पहना और शाही लिबास पहनने के बाद में वहां से खुश व खुर्रम निकला हो अपने साथियों के पास आया। यहाँ आने के बाद में देखा मेरे साथियों ने मुझे जब देखा है इस लिबास में तो बड़े खुश हो गए और खुश होकर कहने लगे आमिर तुम तो बड़े खुश होके आए हो, तुम तो शाही लिबास पहन के आए हो, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुमने आमिर को मांगा है? कहा नहीं, अभी पहली मुलाकात थी, इस मुलाकात में ये बात करना अच्छा नहीं समझा मैंने, अब की बार जो मुलाकात होगी उसमें मांगूंगा। कहा अच्छी बात है, पहले मुलाकात में मांगना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जो मामला था वो अपना मामला छुपा दिया
मामला दरअसल ये हुआ था कि जब नजाशी को देखा, जब नजाशी से कहा कि उसको मेरे हवाले कर दे, और नजाशी ने जब तमाचा मारा, उसके बाद में नजाशी ने उसको शाही लिबास पहनाया और आमिर से कहा, ओ आमिर, तुम उस नबी को और उस शख्सियत को अपना दुश्मन कह रहे हो, जानते नहीं उनके पास में हजरत जिब्रील आते हैं जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाया करते थे। वो हमारे पैगंबर हजरत ईसा ही की तरह नबी है, वो हजरत मूसा ही की तरह नबी है और वो आखिरी नबी है, फिर भी तुम उन्हें अपना दुश्मन समझते हो। मैं समझ गया और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा था कि ओए हबशा के बादशाह और नजाशी, क्या तुम मेरे इस्लाम लाने पर गवाह हो? कहा मैं गवाह हूं, तुम इस्लाम कबूल कर लो। क्या तुम इस्लाम का मुझे कलमा पढ़ा सकते हो? कहा जी हाँ पढ़ा सकता हूं। कहा भाई मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपके हाथ पे इस्लाम के नाम पे बैत करता हूं। इस्लाम के नाम पे जो बैत कर चुके थे, मुसलमान दिल से हो चुके थे, अब इस रसूलुल्लाह के दरबार में जा करके कलमा इस्लाम पढ़ना था और वहां से चले हैं। इन्होंने अपने पूरे इस मामले को छुपा दिया और साथियों से कहा मैं जाके वापस आता हूं, बहाना कोई उज्र कर दिया और वहां से चले गए। वहां से चले सीधे बंदरगाह आए। बंदरगाह आने के बाद कश्ती तैयार थी, कश्ती में बैठे और सीधे यमन के साहिल पे उतरे हैं। यमन में उतरे और वहां से एक ऊंट खरीदा, ऊंट में बैठे और मदीने की जानिब चल पड़े। सुभान अल्लाह। अब मदीने की जानिब दीवाना चल पड़ा है। अब नहीं पता वो कहां जा रहे, दिल खींचे लिया जाता है कहां जा रहे हैं। बारगाह रसूल में जाने के लिए चल पड़े हैं। मदीने के ताजदार के कदमों में होने के लिए चल पड़े हैं। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे हैं आगे, उन्होंने देखा, मैंने दूर से देखा, एक खेमा नजर आया। उस खेमे के बाहर एक सवार खड़ा है जिसके हाथ में 2 सवारियां हैं और सवारियों को पकड़ के वो सवार खड़ा है। दूर से मैंने देखा कौन है, वहां जाए। वहां जाने के बाद में जब मैंने देखा वो कोई और नहीं था, इस्लाम के अजीम जर्दिल हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद थे। हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन अजीम सहाबी है, ये इस्लाम के जर्नील है। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ सालार आज़म है, इस्लाम के जर्नील आज़म है। हम इनकी तारीफ पढ़ें तो क्रिकेट में जो खेलते हैं बेचारे आधे कपड़े पहन के हमारी कौम उनको पढ़ती है, उनके नाम याद रखती है। अरे वो तो मैदान में खेलते हैं। ये वो अजीम रसूलुल्लाह का साहबी है कि अल्लाह के रसूल ने जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, फरमाया ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद इब्न वलीद। ऐसे अजीम साहबी है, ऐसे अजीम साहबी है। मैंने देखा हज़रत खालिद खड़े हैं तो मैं करीब गया, सलाम किया और पूछा आबा सुलेमान कहां का इरादा है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा या अमीर मैं मक्के से आ रहा हूं, मदीने जा रहा हूं। कहा किस वजह से? कभी वहां जाके इस्लाम की और पैगंबर इस्लाम की गुलामी कबूल करने जा रहा हूं, इस्लाम कबूल करने, पैगंबर आज़म की इताअत करने के लिए जा रहा हूं। हजरत आमिर कहते हैं मैंने देखा खेमे में से निकल के हजरत उस्मान बिन तलहा भी बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन तलहा भी खेमे में थे, वो भी बाहर आ गए। कहा मुबारक हो, हम भी इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। कौन? हजरत खालिद इब्न वलीद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के जब दुश्मन थे तो दुश्मनी का भी हक मुकम्मल अदा किया है और ऐसे दुश्मन थे। याद रखें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है। दुश्मन को तौबा की तौफीक मिल जाती है मगर गुस्ताख को नहीं मिलती है। ये हजरत खालिद इब्न वलीद दुश्मन थे, गुस्ताख नहीं थे, इसलिए तौबा की तौफीक मिल गई और इस्लाम के अजीम शान जर्नल बने। जो फातिह फारस है, फातिह जमामा है, जो फातिह शाम है, फातिह इराक व ईरान है, ये अजीम साहबी हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब थोड़ा सा आप वापस पीछे चले और मक्के चलते हैं। हजरत खालिद और हजरत उस्मान बिन तलहा, इनके साथ क्या हुआ था? जबकि ये इतने अजीम जर्नील है, ये अजीम साहबी है, तो इनकी भी दास्तान मुकम्मल होनी चाहिए और इंशाअल्लाह यहीं पे बात खत्म करूंगा हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पर। और मुझे सिर्फ हजरत
खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तज्जबा पे मुख्तसर गुफ्तगू कर दी है। बाकी अगर इनकी गुफ्तगू करने शुरू कर दूं तो सुबह फजर की अजान यही हो जाए कि इनके बारे में किसने क्या लिखा है। सुभान अल्लाह, ये अजीम सहाबी है हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मौसमा में थे। एक दिन बैठे और बैठे हुए सोच रहे थे आखिर क्या मामला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और दिन ब दिन उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। लोग आपके दामन में आते जा रहे हैं, आपके दामन में आकर के इस्लाम कबूल करते हुए चले जा रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा? लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तय कर लिया था कि मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, चाहे पूरा मक्का ही मुसलमान हो जाए तब भी मैं मुसलमान नहीं होगा। और फिर सुलह हुदैबिया के बाद में और कज़ा उमरा के जब सरकार करने तशरीफ लाए उसके बाद में हजरत खालिद फरमाते हैं मैं अपने घर में जाके बैठा रहा कि मैं अपने ही घर में बैठा रहूंगा और वहीं पे पड़ा रहूंगा, बाहर न निकलूंगा, किसी से कुछ न कहूंगा। ये तय कर दिया था और वही अपने घर में बैठा था। मेरे भाई का खत भी मुझ तक पहुंचा और उसमें लिखा था मेरे भाई ने जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो मुसलमान हो चुके थे, उनका नाम वलीद इब्न वलीद था। हजरत वलीद इब्न वलीद था। हजरत खालिद के बाप का भी नाम वलीद है, भाई का भी नाम वलीद था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई वलीद इब्न वलीद जो मुसलमान हो चुके थे और कज़ा उमरा करने के लिए हुजूर के साथ तशरीफ लाए थे। सरकारे रजहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वलीद से भी पूछा था तुम्हारा भाई खालिद कहाँ है? हजरत वलीद ने कहा था इंशाअल्लाह वो भी जल्द ही जाएगा। और उन्होंने खत लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह तुम्हारे भाई वलीद की जानिब से है, खालिद के नाम पे मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। आज रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे जैसा अकल वाला इंसान, तुम्हारे जैसा समझदार इंसान, अक्ल दानिश रखने वाला इंसान इस्लाम से जाहिल कब तक रहेगा, इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है? मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। अरे मेरे खालिद, अरे मेरे प्यारे भाई, इस्लाम के दामन में आ जाओ। ये खत पहुंचा। उसके बाद में हजरत खालिद की दिल की दुनिया बदल गई। हजरत खालिद के दिल में एक अजीम इनकलाब पैदा हो गया। अब हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तय कर लिया कि अब जाऊंगा और बारगाह रिसालत में जाके कब तक फिरता रहूंगा, बारगाह रिसालत में जाकर के गुलामी का पट्टा गले में डाल देता हूं और गुलामी मुस्तफा बन जाता हूं। इसी को हुजूर मुजाहिद दौरा सैयद मुज़फ्फर हुसैन कचौचवी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था, गुलामी गैर की करना मुज़फ्फर गैर मुमकिन है, शहनशाही हम करेंगे गुलामी मुस्तफा बनकर। सरकार खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल में ठान लिया था कि मक्का छोड़ के चला जाऊंगा। और लेकिन उनके दिल में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत जागूसी नहीं हुई थी। उस वक्त उन्होंने तय किया कि हुजूर की जानिब जाके कलमा पढ़ा जाए या हबशा चला जाए या मुल्क शाम चला जाए हिरकल के पास में। फिर उन्होंने तय किया हबशा जाऊंगा तो वहां जाके रहना मेरी शान के खिलाफ है कि मुझे लोग कहेंगे खालिद तेरे जैसा बहादुर मक्का छोड़ के हबशा चला गया डर की वजह से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हिरकल के पास चला जाऊं, उसकी फौज में शामिल हो जाऊंगा और वहां जाके लड़ूंगा। लेकिन फिर कहा मैं अगर शाम चला जाऊं तो हिरकल के पास जाऊंगा तो यहाँ तो मुझे यहूदी होना पड़ेगा या ईसाई होना पड़ेगा, अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा और उनका मजहब इख्तियार करना पड़ेगा और उनके ताबे फरमाबरदार रहना पड़ेगा। नहीं, खालिद में किसी का ताबे और फरमाबरदार नहीं होगा। उसके बाद में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तय कर दिया कि मैं मदीने जाऊंगा और इस्लाम की गुलामी कबूल कर लूंगा, पैगंबर इस्लाम की गुलामी कबूल करूंगा। फिर हजरत खालिद ये तय करके घर से निकले हैं। सफवान बिन उमय्या से मुलाकात अचानक हुई और सफवान से कहा, ओ सफवान तुम्हारा क्या इरादा है, क्या कहते हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है एक दिन आएगा ये पूरे अरब पर गालिब हो जाएंगे और पूरा अरब इनका गुलाम हो जाएगा, पूरा अरब मुसलमान हो जाएगा। हम कब तक इधर उधर फिरते रहेंगे, कब तक हम दूर दूर भागते रहेंगे? क्यों नहीं जाकर मदीने में हुजूर की गुलामी कर ले और जाकर के सरकार के कदमों में निछावर हो जाए। सफवान बिन उमय्या ने कहा, ओ खालिद क्या बात करते हो, अगर पूरा अरब मुसलमान हो जाए मैं अकेला रह जाऊं तब भी मुसलमान नहीं होगा। तुम्हारे होना है तो हो, मुझे नहीं होना है और मैं मोहम्मद की गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। हजरत खालिद समझ गए सफवान के बहुत से रिश्तेदार
जंग बदर में मारे गए थे। इसलिए ऐसी बात करा। मैं वहां से चला तो रास्ते में मुझे इकरमा बिन अबू जहल मिले। ये बाद में सहाबी बने फतह मक्का के बाद हजरत इकरमा मिले। मैंने कहा, ओ इकरमा, तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, किस बारे में? कहा, दिन ब दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बढ़ती जा रही है, ताकत बढ़ती जा रही है, लोग जोग दर जोग उनके गुलामी कबूल कर रहे हैं, मुसलमान होते जा रहे हैं। कब तक हम दूर दूर नारे नारे फिरते रहेंगे? आओ चलते हैं मदीने में और हुजूर की गुलामी कबूल कर लेते, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इकरमा ने भी वही जवाब दिया कि ओ खालिद, क्या बात करते हो? अगर पूरा अरब मुसलमान हो जाए, ही नहीं पूरी दुनिया अगर मुसलमान हो जाए और मैं अकेला बचूं तब भी मुसलमान नहीं होऊंगा, तब भी मुसलमान नहीं होगा। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में हजरत इकरमा भी मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए इसका बाप जंग बदर में मारा गया है, इसलिए इसे बात करता वहां से चले, घर आ गए और घर आने के बाद में खामोश बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद में अपने गुलाम से फरमाते हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं उस्मान इब्न तलहा से मिल के आता हूं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरी बात नहीं टालेगा। अगर टाल भी दे तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो मक्के से चला जाऊंगा। अगर बात फैल भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ देंगे मक्के वाले, मेरा क्या फर्क पड़ता है। हजरत खालिद फरमाते हैं, घोड़ा तैयार हुआ, मैं घोड़े पे बैठा, हजरत उस्मान बिन तलहा के घर आया और यहाँ आने के बाद में हजरत उस्मान बिन तलहा से कहा, ओ उस्मान, तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, किस बारे में? कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनके ताकत में इजाफा होता जा रहा है और इनके चाहने वालों में, इस्लाम कबूल करने वालों में, मुसलमानों में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब ये मक्के में फातिह की हैसियत से आएंगे और फतह मक्का कर लेंगे, मक्के को फतह कर लेंगे, फातिह की हैसियत से आएंगे और उस वक्त हमें मुंह छुपाने की भी जगह न मिलेगी और वो दिन दूर नहीं कि वो अपने मजबूत पंजों से हमारी गर्दनें दबोच लेंगे और हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारा क्या इरादा है? क्या ऐसा कर ले कि मदीने जाए और जाकर के हम भी मुसलमान हो जाते हैं? हजरत खालिद फरमाते हैं, मैं हैरत में पड़ गया। उस्मान ने कहा, खालिद, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, चलो चले। हजरत खालिद ने कहा, अभी दिन है, सुबह रात के वक्त चलते हैं। कहा, ठीक है। अब उन्होंने मंसूबा कर दिया। हजरत उस्मान बिन तलहा और हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मक्के मुअज़्ज़मा से सुबह शादी के वक्त चले हैं और चलते हुए मदीने मुनव्वरा से बाहर गए और यहाँ आकर के आपकी मुलाकात हजरत अमर बिन आस से भी हुई। ये भी बारगाह रसूल में जा रहे थे, ये दोनों भी चले थे। अब 2 से 3 हो गए और ये 3 ऐसे अजीम सरदार हैं मक्के के और ऐसे अजीम सहाबी मेरे हुजूर के हैं कि हजरत उस्मान बिन तलहा, हजरत अमर बिन आस, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ऐसे अजीम सहाबी है कि जिन पे इस्लाम को नाज है। ये वो अजीम सहाबी है जिनका नाम लेने से आज भी हमें नाज है। या ऐसे गुलामान मुस्तफा है और ये ऐसे अजीम सहाबी है, इस्लाम के जर्नील आजम हजरत खालिद इब्न वलीद है तो उस्मान बिन तलहा भी फातिह आजम है, हजरत अमर बिन आस भी फातिह आजम है। सुभान अल्लाह। ये तीनों कहते हैं कि हम चले हैं और चले हुए जब मदीने के करीब पहुंचे, जब हिरा के मकाम पर जब पहुंचे तो मदीने शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में हमने सुना असर की अजान कोई और नहीं, बिलाल हबशी दे रहे थे। सुभान अल्लाह। हमने कानों से बिलाल हबशी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी जन्नती आवाज सुनी, उनकी आवाज सुनी, हमारे दिल की दुनिया तो ही बदल चुकी थी और हम पे वजदानी कैफियत तारी हो गई। वहीं पे हमने अपने घोड़ों को बांधा, लिबास तब्दील किया, लिबास तब्दील करने के बाद में हम मदीने में दाखिल हुए। तो वहां जब पहुंचे हजरत खालिद फरमाते हैं, मुझे सबसे पहले मिला वो मेरा भाई वलीद इब्न वलीद था। हजरत वलीद से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, खालिद जल्दी करो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हुजूर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां से हम चले सीधे मस्जिद नबी में पहुंचे। हमको देखे आका मुस्कुराए, हमने सलाम अर्ज किया, सरकार ने जवाब इनायत फरमाया। हम बारगाह रिसालत में जाके बैठे। हजरत खालिद ने सबसे पहले हुजूर के हाथों में बैत की और कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। उनके बाद हजरत उस्मान बिन तलहा मुसलमान हुए। उनके बाद में हजरत आमिर बिन आस मुसलमान हुए और जब ये दामन इस्लाम में आ गए, हजरत आमिर बिन आस कहते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमने कबूल कर ली, अब उसके बाद में हुआ ये कि जब भी कोई मशवरा होता या कोई अहम मीटिंग होती तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल आगे हमको बिठाते थे।
ہماری یہ عظمت، ہماری اتنی عزت کہ آگے ہم کو بٹھاتے تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا صدیق اکبر کے زمانے میں، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی مسلمان کذاب کے خلاف. مسلمان کذاب وہ مردود شخص ہیں. میں آپ کو اجازت ہو تو تھوڑا مسلمان کذاب کے بارے میں عرض کر دوں. تاریخ تبری کے حوالے سے محمد بن جریر تبری رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کذاب وہ بدبخت شخص ہیں جس نے حضور کے ظاہری زمانے میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن چلی نہیں. حضور کی وفات کے بعد اب کھل کے اس کو موقع مل گیا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تب عرب کے اندر افرا تفری کا عالم تھا. کوئی زکات سے انکار کر رہا تھا، کوئی کھلم کھلا مرتد ہو رہا تھا. اس طرح افرا تفری کے عالم میں صدیق اکبر خلیفہ بنے. لیکن باہر ابو بکر تیری عظمتوں پر قربان، حضرت ابو بکر کی عظمتوں پر اور آپ کی استقامت پر قربان. میں سمجھتا ہوں صدیق اکبر کی 2 سالہ اگر خلافت ہوتی تو ہم اور آپ مسلمان بھی نہیں ہوتے. ہم جو مسلمان ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور آپ کی جبل استقامت استقلال کی دلیل ہے. آگے آ جاؤ تھوڑے سے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ ہی کو نوجوانوں کو ہی سنانا ہے تاکہ وہ سنیں کہ ان کی شان کیا عظیم تھی اور وہ کیسے استقامت والے اور اسلام کے عظیم جانباز صحابہ ہیں. ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل ہمیں بنانا ہے. آئیڈیل ہمارے لیے ان کی زندگی ہے. یہ کرکٹ میں نہ کرکٹ کھیلنے والے یا ٹی وی کے پردوں پہ ناچنے والے یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں. ان سے یہ ہماری جوتیوں کے برابر نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل تو رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمارے لیے تو عاشقان رسول آئیڈیل ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کذاب یہ وہ بدبخت شخص تھا. حضور کے وصال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد ظاہری وصال کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کھلم کھلا کر دیا. اللہ اعلان کہنے لگا میں نبی ہوں. لوگ آتے اور اس کی کلمہ پڑھتے، لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. اب اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ نبی معجزہ بتاتے تھے، میں کیا بتاؤں؟ تو کہا نبی کے جو معجزے ہیں میں بھی اسی طرح بتاتا چلا جاؤں، میں بھی اسی طرح معجزے بتاؤں. تو ایک شخص تھا جو حضور کے پاس میں آ کے مسلمان بھی بعد میں مرتد ہو گیا. اس نے کہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ تھا کہ کنواں ایک جو سوکھ گیا تھا، سرکار دو جہاں علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنا تھوک مبارک لعاب دہن کنویں میں ڈالا، کنویں میں میٹھا پانی ابلا اڑا. یہ سرکار کا معجزہ ہے. کہا کہ یہ تم بھی کر کے دکھاؤ. کہا یہ ٹھیک ہے کر دیں گے. کرے کیسا ہے؟ تو چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں یمامہ کی اس کنویں میں آلریڈی پانی موجود تھا اور کہا کہ تم ایسا کرو افواہ پھیلا دو کہ کنویں کا پانی سوکھ گیا ہے، گودی میڈیا کی طرح. کہ تم افواہ پھیلا دو پانی سوکھ گیا. اب ان لوگوں نے 4-5 رکھے ہوئے تھے، انہوں نے افواہ پھیلا دی پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. لوگوں نے مان لیا پانی سوکھ گیا. کہ اس کے پاس ہو جائے، ادھر جنات رہتے ہیں، جاؤ گے پکڑ دیں گے. لوگ آئیں گے تو دیکھ لیں گے، اس لیے لوگوں کو اسے بھی ڈرا کے پاس میں جانا نہیں. اور اسے بھی کہا کہ پانی سوکھ گیا. لوگ ڈرنے بھی لگ گئے، پانی سوکھ گیا، ادھر جانا نہیں. ایک دن اب جب یہ بات پھیل گئی پورے یمامہ میں، مشہور ہو گیا، کنواں سوکھ گیا. اب مسلمان کذاب نے کہا میں معجزہ دکھا کے اس کا پانی واپس لاؤں گا. سارے لوگ جمع ہو گئے. پانی موجود تھا کنویں میں موجود تھا، سوکھا نہیں تھا، کھارا بھی نہیں ہوا تھا، پھیکا بھی نہیں ہوا، میٹھا پانی تھا، موجود تھا. مسلمان کذاب نے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں معجزہ دکھاؤں گا، آؤ. حضور نے دکھایا، میں بھی دکھا سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا. وہ آیا کنویں کے بعد جا کے دیکھا کنویں میں پانی موجود تھا اور اس نے آ کے جیسے اپنا ناپاک تھوک کنویں میں ڈالا، پانی چلا گیا، پانی سوکھ گیا. لوگوں سے کہا تھا تم دیکھنا پانی بھی ابل پڑے گا اور پانی آئے گا. اس نے تھوکا، اللہ کی قدرت، پانی تھا وہ بھی چلا گیا، حضرت. اور جب لوگوں نے جا کے دیکھا بڑی رسوائی، واپس گیا. کہا اب دوسرا بتا، یہ تو کام نہیں آیا، فیل ہو گیا معجزہ. دوسرا بتاؤ بھائی. کہا اچھا یہ تھا کہ مکہ میں حضور کے پاس ایک بار چھوٹے چھوٹے بچے لا گئے، ان کے سر میں بال نہیں تھے اور زبان سے
और लुकनत थी, जबान हकलाते थे, बोल नहीं पाते थे, बीमार थे। सरकार दो जहां के दरबार में लाया गया, हुजूर ने उनके सरों पे हाथ फेरा तो अल्लाह ने बाल भी अता फरमा दिए, जबान की लुकनत भी दूर हो गई और तंदुरुस्त और तवाना भी हो गए। अच्छा ऐसा करो, तंदुरुस्त बच्चे ले आना वरना फिर बीमार हो जाएंगे। कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक मुसलमान कदा हमारे नबी को मौजज़ा बताएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को जमा किया, उनके सरों में बाल भी मौजूद थे, जबान भी सही सलामत, कुछ भी बीमारी नहीं थी। अब उनको सिखा के पढ़ा करके लाया गया और ला के कहा कि अब देखो इनके सर में ऐसा कपड़ा डाल दिया गया कि अगर ये सर फेरेंगे तो धीरे से कपड़ा सरका देंगे, धीरे से कपड़ा सरका देंगे। और उसमें एक बात ये थी कि हुजूर ने जब अपने उनके सरों पे हाथ मुकद्दस फेरा था अपने दस्ते मुबारक, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ मुबारक रखा उनके मुकद्दस बदन से खुशबू आने लग गई थी। सुभान अल्लाह। सरकार ने हाथ रखा, खुशबू आने लग गई। तो बहरहाल मुसलमान कज़्ज़ाब ने पूरा हाथ खुशबू में डुबोया, खुशबू की तेल शीशी में डुबो कर पूरा खुशबू करके लेके आया और यहाँ के बच्चों को आगे खड़ा कर दिया। तो जिनके सरों पे बाल मौजूद थे उनके सर पे हाथ फेरता जाता, बाल उड़ते चले जाते थे। जैसे ही हाथ फेरा बाल थे वो भी चले गए, सारे बच्चे टकले हो गए। और जब उसके चेहरे पे हाथ फेरा तो वो हकलाने लग गए, जबान सही सलामत थी, हाथ फेरती वो हकलाने लग गए, लुकनत आ गई जुबान में। ऐसे ऐसे मौजज़े बताए। ऐसे अगर मैं अर्ज करता चला तो बहुत सारे वाक़यात है। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, ये भी सुन ले और बाद में फिर आप ये मुसलमान कज़्ज़ाब की मौत बयान कर दूं और बात खत्म कर दूं। बहरहाल मुसलमान कज़्ज़ाब हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के अजीम जनरल, उनसे पहले सिद्दीक अकबर ने मुसलमान कज़्ज़ाब पर हमला करने के लिए हजरत शरजील बिन हसना को भेजा। वो आए, मुसलमान कज़्ज़ाब के पास बड़ी ताकत थी, बड़ी फौज थी। हजरत शरजील बिन हसना मैदान पीछे छोड़ के पीछे हटते हुए मजबूर हो गए। इतनी बड़ी ताकत थी मुसलमान कज़्ज़ाब के पास। यमामा वालों ने हजरत शरजील को पीछे हटते हुए मजबूर किया, पीछे हट गए। हजरत इकरमा को भेजा, वो भी पीछे हट गए। अब अल्लाह के नबी के इस अजीम जानशीन और जानिसार साहबी सिद्दीक अकबर ने हजरत खालिद को भेजा। कब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार जाएगी और मुसलमान का काम तमाम कर जाएगी। अब हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले और जब यमामा आए, यहाँ आके अपनी हिकमत अमली से हजरत शरजील भी साथ में थे, हजरत इकरमा और दिगर बड़े बड़े साहबा साथ में थे, बदरी साहबा भी थे, हजरत फारूक आजम के बड़े भाई हजरत ज़ैद भी साथ में थे जो शहीद हो गए और हजारों साहबा जंग यमामा में शहीद हुए। और जंग यहाँ आकर के यमामा के मैदान में जंग लड़ी और जब जंग जोर और शोर से जारी थी तो मुसलमान कज़्ज़ाब ने अपनी फौजियों से सुबह में कह दिया था, आज जी तोड़ के लड़ो, जान लड़ा दो। अभी थोड़ी देर बाद में, थोड़ी ही देर में हजरत जिब्रील आएंगे, फतेह की खुशखबरी सुना देंगे, आज जीत हमारी होगी। अच्छा, जीत हमारी होगी। जिब्रील आएंगे खबर देने के लिए। हुजूर के पास वही लेके आते थे, तो कहिए मेरे पास भी जिब्रील आते, यही कहता था लोगों को। और आता कोई नहीं था, वो इब्लीस आता था, वो इब्लीस ही आता था, कोई नहीं था। कहा जिब्रील आते हैं। तो ये अपने घर में बैठा था, उसके पास उसकी बीवी थी, दोनों मियाँ बीवी बैठे थे और जंग जोर से जारी थी। और फिर हजरत खालिद की हिकमत अमली से मुसलमान गालिब आए और दुश्मन कुफार हारने लगे। तो उनका सिपह सालार आया दौड़ के आके कहने लगा कि क्या हुआ, जिब्रील फतेह की खुशखबरी लेके आए, कब बस आने वाले, तुम लड़ते रहो, आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद फिर आया, कहा क्या हुआ, आए, कभी नहीं आए। और फिर कहा कि अब आए ना आए, हम तो जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हजरत खालिद अपनी हिकमत अमली से गालिब आ रहे हैं, हमारी आधी से ज्यादा फौज कट चुकी है। बताओ जिब्रील कब आएंगे? कब बस आने वाले हैं। कब तो मैदान छोड़ के हम भी भाग रहे हैं। वो सिपह सालार उधर गया, मुसलमान कज़्ज़ाब की बीवी पास में बैठी थी और ये बदबख्त पूरी चादर ओढ़ के बैठा था। और आके जब देखा जिब्रील आ रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं, उसकी बीवी बार बार सुन रही थी। तो औरतें होती हैं, औरतें होती, पास में बैठी थी। उसने चादर एक हाथ से हटाई, दूसरे हाथ से झापड़ दी मुंह पे। कब तक आएगा तेरा जिब्रील, फौज कट रही है अब तो। आई तो गए थे, तो उन्हें थप्पड़ मारी और डर कर भाग गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिब्रील तेरी थप्पड़ की डर से वापस चले गए, आए थे अभी, बस करीब ही आ गए थे। तो उन्हें थप्पड़ मारी, पूरी फौज हार जाएगी। अब थप्पड़ जब और आ जाएगी, फिर कहा भागने का मौका आया,
پیچھے تبل بجنے لگ گئے، فوج پیچھے ہٹنے لگی، مسلمہ قذاب جا کر کے ایک باغ میں چھپا، اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے اس باغ میں بھی گھس گئے، اور افراتفری کے عالم میں جو بھی ہاتھ میں آیا واصل جہنم کرتے چلے گئے۔ اور اسی دوران میں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم صحابی رسول ہے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، حضرت حضور سرور عالم کے چچا کو شہید کیا، حضرت امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت وحشی بن حرب ہے کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو کفر کی حالت میں جب شہید کیا، اور جب اسلام قبول کیے، جنگ جماعوں میں تھے، وہ دور سے لڑ رہے تھے، دور سے دیکھا مسلمان قذاب کو کھڑے ہوئے تو دل میں خیال آیا، جب میں حالت کفر میں تھا تو اسلام کے عظیم جانباز حضور کے صحابی اور حضور کے چچا کو شہید میں نے کیا تھا، تو کیوں نہیں اسلام لانے کے بعد کافروں کے سب سے بڑے آدمی کو قتل کرنے والا بھی میں ہی بن جاؤ اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ آپ نے کا خنجر نکالا اور وہیں سے آپ نے خنجر مارا، مسلمان قذاب کے سینے سے خنجر آر پار ہوا، وہ گرا، واصل جہنم ہوا۔ حضرت خالد نے اعلان کر دیا کہ اب کس کے بھروسے میں لڑتے ہو، تمہارا جوتا نبی واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اور پھر مسلمان قذاب مارا گیا، فوج ماری گئی، حضرت خالد بن ولید نے فتح کا پرچم بلند کیا، فتح کا جھنڈے وہاں گاڑے، لیکن افسوس اس میں بے شمار بدری صحابی شہید ہوئے، 600 سے زیادہ یا 3000 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید ابن خطاب بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی جنگ میں شامل تھے، زخمی حالت میں مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا، بابا میں اپنے تایا کو بچا نہیں سکا، ان کو کھو چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے، عبداللہ تم واپس کیوں چلے آئے، میرا بھائی جب چلا گیا تو تم بھی چلے جاتے۔ کہا میں نے کوشش تو شہادت کی تھی، لیکن مقدر میں ابھی شہادت نہیں ہے بابا، ابھی زندگی اور باقی تھی، اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرا بھائی مجھ سے 2 باتوں میں بڑا بازی لے گیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے مقام شہادت سے سرفراز کیا گیا، شہید بھی مجھ سے پہلے ہوا اور مسلمان بھی مجھ سے پہلے ہوا، میرا بھائی 2 چیزوں مجھ سے بازی لے گیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول ہیں، جانباز ہیں، اسلام کے جرنیل ہیں، ان کی جنگیں تاریخ طبری میں کم سے کم 150 صفحات صرف حضرت خالد بن ولید پر ہیں، اور تاریخ ابن خلدون میں الگ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے جن کا مدار ملک شام میں ہے، ملک شام میں آپ کا مدار اقدس ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عامر بن عاص، صدیق اکبر، حضور کے ہر صحابی افضل ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی افضل و اعلیٰ ہے، اور آسمان اسلام کے عظیم ستارے ہیں یہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جل شان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کے ہم کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے بچی کی جو شادی ہے ابرار احمد صاحب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ شادی میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو آج کے بعد جائز رسومات ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرمائے، ناجائز رسموں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت خالد بن ولید کے صدقے میں گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔